نیتن میکسن آئیں گے اور کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اسی یسوع کے پاک و برکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ انجیل مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے خداوند کے دل کی بخش کلام میں سے متی کی انجیل 28 باب اس کی پہلی آیت سے 10 آیات تک، پیج نمبر 39 سوری۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پھوٹ پڑتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا پنچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف سے اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ پاک لمحے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مسیح خداوند کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ آج کے دن کے لیے سب کو مبارک، جس دن کو ہم آج منا رہے ہیں مبارک کے لائق ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا، اور اس نے جو کہا وہ سب پورا ہوا، اور پھر وہ دنیا میں اپنا کام پورا کر کے بدنی طور پر آسمان پر چلا گیا۔ اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ پوری دنیا یروشلم میں یسوع مسیح کی قبر کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور وہاں لکھا ہے اس کی قبر خالی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم جو کچھ یسوع نے کہا ہے اسے کرنا ہے۔ یہ سب بعض لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح تو 2000 سال پہلے یہ سب کچھ ہوا، پھر ان چیزوں کو یاد دلانا یا منانا اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سنیں، ہمیں ہر روز ان باتوں کو یاد کرنا ہے، صرف ایک دن نہیں، ہر روز۔ آپ جانتے ہیں، بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں اور پھر توجہ میری طرف رہے۔ پوری توجہ کریں گے، اور جو لوگ آئے ہیں توجہ میری طرف رہے، مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں، اور ہم اسی لیے آئے ہیں، سنیں اور برکت پائیں۔
यही लिखा है, सुनना खुदा के कलाम से, सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। जो खुदा के कलाम को सुनता है वो ईमान में बढ़ता है। 2 तलावतें हमारे लिए की गई, और मैं जिस बात को कर रहा था वो ये है कि हमें इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक एक बात हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्या यीशु ने जब आखिरी खाना खाया और कहा तुम भी मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और हम जब शायरवानी लेते हैं, रोटी तोड़ने की रस्म में शरीक होते हैं, तो वो आखिरी खाना याद करते हैं जो यीशु मसीह ने खाया। जब हम यूहन्ना की इंजील 13वां बाब पढ़ते हैं, और जुमेरात को हमने उसको किया, और वो ये था कि हमने एक दूसरे के पाँव धोए। और वहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं उस्ताद ने अपने शागिर्दों को कहा, मुझे तुम उस्ताद खुदावंद कहते हो, मैं हूँ, और मैंने तुम्हारे पाँव धोए। तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। तो ये हमें तालीम दी गई है कि हमने ऐसा करना है। फिर आप जानते हैं कि जब खुदा ने मूसा को मुकर्रर किया कि वो मिस्र से बनी इस्राइल को निकाले, और फिर खुदा ने बड़े मौजूदे किए, मिस्र में किए, फिर बहरे कुल्थम को 2 हिस्से कर दिया, फिर 40 बरस तक आसमान से मन दिया खुदा ने, और वो ना खाना पकाते थे और ना उनको कोई इकट्ठा करना पड़ता, बीजना पड़ता था, ना काटना पड़ता था, आसमान से मन आता और वो वहां से उसे खाते। जो कपड़ा वो मिस्र से लेकर आए थे, उनके गले का ना कपड़ा फटा, ना पाँव की जूती टूटी। 40 बरस तक उनके गले के कपड़े और पाँव की जूती बिल्कुल ठीक रही। हालेलुया। ये हमारा खुदा है, और खुदा ने मूसा से कहा ये बातें बनी इस्राइल के ज़हन नशीं करना, और नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद को बताना कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। तो फिर क्यों ना हम अपनी औलाद को ये बातें सिखाया करें, ताकि हमारी औलाद के ज़हन नशीं हो। यीशु मसीह हमारी खातिर दुनिया में आया, उसने सलीब पर दुख उठाया, सलीब पर हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह दरअसल है कौन। जब हम यीशु मसीह के बारे में तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह दोहरी शख्सियत है। एक ही वक्त इंसान भी है और खुदा भी। यीशु मसीह एक ही वक्त इंसान भी है और खुदा भी। और ये बात बयान करना नहायत तो मुश्किल है, और समझ में आना उससे ज्यादा मुश्किल है। मगर अगर हम अपने आप को, अपने ज़हन को खुदा के ताबे करें, फिर समझेंगे। सुने, मैं छोटे से तरीके से समझाता हूँ, हो सकता है आपको ये बात समझ आ जाए, और मेरा ईमान है जब हम तवज्जो करते हैं तो समझते हैं। खुदा ने यीशु मसीह को जब दुनिया में भेजा तो उसके लिए जो कुछ कहा गया उस पर हम गौर करें। यूहन्ना पहला बाब 14 आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे खुदा के अकलौते का। पहली आयत में लिखा है खुदा मौजूद है और उसके साथ उसका कलाम है, और खुदा का कलमा खुदा के अंदर है, वही पैदा हुआ, वही मुजस्सम हुआ, और वही यीशु मसीह कहलाया। उसके लिए मुकाशवा की किताब में तीसरे बाब की 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो कहा गया है, जो आमीन और सच्चा और बरहक और खुदा की खिलकत का
मबदा है, वो ये फरमाता है। यीशु मसीह ने ये बातें यूहन्ना को कही और यूहन्ना ने लिखी और लिखा जो आमीन है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आमीन है। यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह बरहक गवाह है और खुदा की खिलकत का मबदा है। हालेलुया। तो आमीन का मतलब क्या है? जब हम दुआ करके आमीन करते हैं तो इसका मतलब है ऐ खुदा जो मैंने मांगा मुझे दे। आप दुआ कर रहे हैं, कोई करीब बैठा आमीन करे आपके साथ, इसका मतलब इसने जो कुछ कहा है मैं मुतफिक हूँ। अगर यही आमीन यीशु के लिए कहा जाए तो इसका मतलब है दुआओं का सुनने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और अगली बात है कि वो आमीन और सच्चा, खुदा के सिवा कोई भी सच्चा नहीं, और यीशु के लिए आया है कि वो सच्चा है। आपको याद हो यीशु मसीह एक जगह मौजूद थे और यीशु बातें कर रहे थे। एक आदमी यीशु के पास आया, वो बहुत अमीर था, वो चाहता था कि यीशु मुझे दुआ दे या कोई मशवरा दे और मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस से बन जाऊं। उसने आकर कहा यीशु को, ऐ नेक उस्ताद। यीशु ने कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं, हाँ एक है, यानी खुदा। हालेलुया। एक आदमी आकर यीशु को कह रहा है ऐ नेक उस्ताद, और यीशु ने कहा कोई नेक नहीं, एक भी नहीं, हाँ एक है और वो खुदा है। यीशु कहना ये चाह रहा है अगर मैं नेक हूं तो फिर मान ले कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर ये जान रहे हैं कि यीशु किस तरह खुदा है। मैं इस तरफ आना चाहता हूं, तवज्जो कीजिए। फिर कहा बरहक गवाह। यीशु ने कई बार ये बात कही, जो बाप करता है मैं वही करता हूं, मैं बाप को जो करते देखता हूं मैं वही करता हूं, और मेरे बाप ने मुझे जमीन आसमान का अख्तियार दिया है। तो इसका मतलब क्या है? बरहक गवाह उसे कहते हैं जो सारे कामों को अपनी आंखों से देखे। तो यीशु खुदा के अंदर था, खुदा के साथ था और सारे कामों को देखता था। इसलिए यीशु ने कई बार ये बात कही, मैं और बाप एक है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14 बाब यीशु मसीह बातें कर रहा है अपने शागिर्दों से। फिलिप्पस ने कहा ऐ खुदावन उस्ताद, तू हर रोज हमें बाप की बातें बताता है, बाप को हमें दिखा, यही हमारे लिए काफी है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे दरमियान हूँ और तू अब भी कहता है बाप को हमें दिखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। इनका निचोड़ मैं निकालूंगा ये किस तरह, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें जो आखिरी बात है वो बड़ी सुनने की है, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। यीशु ने कहा मैं कौन हूँ? मैं बाप हूँ और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। ऐसे लगता है जैसे बड़ी उलझन पड़ गई, ये क्या तरीका है? यीशु कह रहा है मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो यीशु बरहक यानी खुदा के साथ साथ था, खुदा के सारे कामों को देखता था। फिर खुदा की खिलकत का मबदा, अभी नए तर्जुमों में वहां खिलकत लिखा है, पुराने तर्जुमों में खिलकत लिखा है, और यहाँ भी जो मेरे हाथ में खिलकत लिखा है नीचे जेर है जी, मैक्सन है नीचे जेर खिलकत के। जो भी पढ़ रहे हैं इसमें जब आप पढ़ेंगे मुकाशा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 14 आयत तो यहाँ लिखा है खुदा की खिलकत का मबदा। अगर ये नीचे जेर ना हो तो खिलकत बनता है, मगर खिलकत के बारे में हमने ये बहुत पहले सीखा। खुदा के अजीम खादम पादरी असलम ज़ियाई, और उन्होंने इसके लिए बड़ा प्यारा बयान किया था। खिलकत के मैनी क्या है? खिलकत के मैनी है नेचर, आदत, तबीयत।
تو یہاں لکھا ہے یسوع مسیح کون ہے؟ خدا کی خلقت کا مبدا، خدا کی ساری عادت، خدا کی ساری نیچر، خدا کی طبیعت، خدا کے کام سب کے سب مجسم ہو کر یسوع کی ذات میں سکونت کرتے ہیں۔ یہ ہے خلقت، اور اسے خلقت کہا جاتا ہے۔ مبدا کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والا ڈھیر، خدا کی عادت، طبیعت، نیچر نہ ختم ہونے والا سب کے سب یسوع کے اندر سکونت کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی کے لیے خدا کے خادم پالوس نے جو باتیں لکھی ہیں 2-3 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے میرے ساتھ۔ کلسیوں کے نام خط اس کا پہلا باب 15 ہے، یوں لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، جس نے یسوع کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ یہ اور میں اینڈ پہ جا کے ان کو بالکل سادہ کروں گا، توجہ کریں گے تو برکت پائیں گے۔ لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اب مولود کے جب آپ ڈکشنری میں معنی نکالیں گے تو اس کے 3-4 معنی ہے، ان میں ایک ہے جنا ہوا، پیدا ہوا، تو یہ بھی ہے، مگر یہاں جو جملہ ہے اس کو دوبارہ دیکھیے، مخالفین اسے اور طرح پڑھتے ہیں، اور جب کوئی پڑھے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہے کا جملہ خدا کے لیے ہے، ہوا، ہم ہوئے، ہم تھے، ہمارے لیے، خدا کے لیے ہے، خدا ہے، خدا ہوا نہیں، خدا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یسوع مسیح دنیا میں آنے سے پہلے خدا کے اندر تھا، اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، آسمان، سورج، چاند، ستارے کچھ نہیں تھے، یسوع تھا اور خدا کے اندر تھا، خدا کا کلمہ تھا۔ کلمہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ اچھا ایک آیت اور آگے پڑھ لیں، دوسرے باب کی نامی آیت، کلسیوں کے نام رسول پالوس کا خط، دوسرے باب کی نامی آیت میں لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمول ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سار ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں، جو سارے اختیار کا سار ہے۔ نبیوں نے جو باتیں سنی، سیکھی اور جو جانا وہ لکھا۔ پھر سنیں کیا کہتا ہے خدا کا خادم، کیونکہ کلسیوں دوسرا باب نامی آئے، کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی، الوہیت خدا کو کہتے ہیں، خدا کی ساری معمولی مجسم ہو کر، مجسم کہتے ہیں کوئی ہستی ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وجود ہے۔ وجود اور جسم میں فرق ہے، یہ یاد رکھیے۔ وجود ہوا کا بھی ہے، ٹکراتی ہے مگر جسم نہیں رکھتی، اس کو کہتے ہیں وجود۔ کسی چیز کا، بدروحوں کا وجود ہے مگر جسم نہیں ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کلمہ خدا کے اندر تھا، اس کا وجود تو تھا مگر اس کا جسم نہیں تھا۔ اس لیے یہاں لکھا ہے کیونکہ الوہیت خدا کی معمولی، خدا کی قدرت مجسم ہو کر، جسم لے کر یسوع کے اندر آ گئی اور وہ سکونت کرتی ہے، اور تم اس میں معمول ہو گئے ہو، اور ہم نے اسی سے برکت پائی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک حوالہ اور میرے ساتھ دیکھیں، عبرانیوں کا خط پہلا باب، بڑی پیاری باتیں، ذرا توجہ کریں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ کسی نے نکال لیا؟ پڑھ دیں ذرا پہلے دوسری آیت۔
जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आदम की पैदा की। आमीन। फिर तवज्जो करें, अब्रानियों का खास पहला बाब पहली आयत में लिखा है, अगले जमाना में, वो जमाना जो मसीह से पहले था, मसीह यीशु दुनिया में आया, खुदा ने इसे आखिरी जमाना कहा। यीशु ने कहा आखिरी जमाने में मैं आया। यीशु मसीह का जमाना आखिरी जमाना है, उससे पहले 2000 साल गुजर गए। और यूं लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला उसने आदम भी पैदा किए। जब यीशु खुदा बाप के अंदर था तो यीशु ने ही सारी कायनात को बनाया है। इस सारी चीजों को बनाने वाला वही है। मगर तीसरी आयत पढ़े तो लिखा है, वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यीशु मसीह कौन है? यहाँ लिखा है कि वो उसके जलाल का परतू। किसके जलाल का? खुदा के जलाल का। जलाल के मैनी बहुत सारे हैं। यहाँ जलाल खुदा के चेहरे को कहा है, खुदा के नक्श को कहा है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, यीशु कौन है? अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। यीशु कौन है? और यहाँ कहा वो खुदा के जलाल का परतू, खुदा के चेहरे का दूसरा रूप है। इसलिए तो यीशु ने फिलिप्पस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। हालेलुया। यीशु खुदा की जात का नक्श है। आगे लिखा है, वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श है। वो नक्श जो खुदा के हैं वही यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। अब मैं आखिरी बात में सारी चीजों को समेटने लगा। सुने, यीशु क्या है? यीशु के नक्श खुदा के नक्श हैं। यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। सुने सुने, बड़ी खास बात है। मेरा रूह है, आपका रूह है। इंसान जब दुनिया में मरता है, बदन मरता है, रूह नहीं मरता। रूह खुदा के पास जाता है, जो जगह खुदा ने मुकर्रर की है। जो मेरी शक्ल है वही मेरे रूह की शक्ल है, जो आपकी शक्ल है वही आपके रूह की शक्ल है। जो मसीह में मरते हैं उनकी रूहें यीशु के पास आसमान पर जाती है। अब यीशु आने वाला है। जब यीशु आसमान से आएगा तो क्या होगा? वो रूहें जो यीशु के पास हैं, नेक मुकद्दसों की, वो यीशु के साथ आएंगी। उनके बदन तो जमीन पर दफनाए गए हैं। जब यीशु आएगा, बदन जमीन से निकलेंगे, रूहें आसमान से आएंगी, दो शक्लें मिल जाएंगी, फिर एक हो जाएंगी। हालेलुया। कोई थोड़ी सी बात समझ में आई? जो मेरी शक्ल है वही मेरे रूह की शक्ल है। खुदा बिल्कुल जैसा खुदा है वैसे ही उसने इंसान को बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया और कहा, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर बनाए, जैसे नक्शो निगार खुदा के हैं वैसे ही उसने हमारे बनाए। मगर हम में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक जात है जिसमें फर्क नहीं। यीशु मसीह जब दुनिया में आया, वो खुदा का कलमा और खुदा का रूह दुनिया में आया। यीशु जब मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, जिस्म इंसान का था। जिस्म इंसान का मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। अब यीशु के अंदर दो चीजों की जरूरत। जब बच्चा पैदा होता है, खुदा उसमें दो चीजें रखता है, एक कलमा शख्सियत है और एक रूह। और ज़िक्रिया की किताब 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब मैंने, खुदा कहता है, इंसान को पैदा किया, उसके अंदर रूह खलका। हम सब का रूह मखलूक है, हम सब का कलमा मखलूक है। मगर जब यीशु पैदा हुआ मुकद्दसा मरियम से, खुदा ने उसके अंदर अपना रूह रखा, अपना कलमा रखा।
यीशु के अंदर यीशु का सिर्फ बदन जमीनी था, यीशु का रूह और कलमा आसमानी खुदा का कलमा था। इसलिए तो यीशु कामल खुदा और कामल इंसान है। यीशु बदन के एतबार से इंसान है और यीशु के अंदर जो रूह था, कलमा था, वो खुदा का था, इसलिए यीशु खुदा है। हालेलुया। ये बात थी जिसके लिए मैं कह रहा था। इसलिए यीशु अपने आप को खुदा भी कहता है और इंसान भी। कई बार यीशु कहता है मैं इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया हूं। अपने बदन की बात कर रहा है। और जब कह रहा है फिलिप्पस, जिसने मुझे देखा खुदा ने खुदा को देखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरी शक्ल और खुदा की शक्ल एक है, दो नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुदा का रूह हूं। हालेलुया। रूह मुजस्सम हुआ। आप याद होगा जब यीशु मसीह आगे जब अभी हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील में, वहां लिखा है जब यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, मरियम वहां मौजूद थी। मरियम ने यीशु को छूना चाहा। यीशु ने कहा मरियम अभी मुझे ना छू, मैं आसमान पर नहीं गया, मैं अपने बाप के पास नहीं गया। वो बदन की बात हो रही है। यीशु का बदन अभी नहीं गया, रूह तो हर जगह मौजूद है। डाकू को यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मरियम को कह रहा है मैं आसमान पर नहीं गया, डाकू को कह रहा है मैं आसमान पर मौजूद हूँ, थोड़ी देर तेरे साथ। और खुद कब्र में चला गया। और वहां लिखा है कब्र में भी नहीं, आलमे रुआ में चला गया। उन रूहों में जो पुराने जमाने में मरी थी और जो यीशु पर ईमान रखते थे, उनको जाकर कहा तुमने मुझ पर ईमान रखा, देखो मैं तुम्हारे लिए जान देकर तुम्हारे पास आया हूँ और अब मैं बाप के पास जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिलिप्पस को कहा जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु दोहरी शख्सियत है। यीशु के अंदर कलमा खुदा का है, यीशु की शक्ल खुदा की है, खुदा यीशु के अंदर रूह खुदा का है, जिस्म इंसानी है। इसका बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ। ये बहुत उत्तम बातें हैं, मगर हम कलीसिया को नहीं बताएंगे तो उनको किस तरह पता चलेगा? एक बार दो बार इसी तरह आस्ता आस्ता आपको पता चलेगा। तो यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जो कहा और उसने हकीकत किया, हम ये देख रहे हैं। तो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तो आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिलिप्पस को कहा जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। डाकू को कहा आज ही तो मेरे साथ होगा। मरियम को कहा मैं अभी गया नहीं। यीशु रूह के एतबार से हर जगह मौजूद है, बदन के एतबार से एक जगह पर होता था। और जो मैं बात कहने लगा था सुने, थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मैं पीछे गया और रिवाइज किया जाता है। अब यीशु कहाँ है? हालेलुया। अब वक्त के हिसाब से हो जाती है, मुझसे कभी कभी बात निकल जाती, वापस आ गई है कोई बात। अब यीशु कहाँ है? क्या लिखा है? वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और किबरिया खुदा को कहते हैं। और यीशु मसीह अब खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद है। अगर हम यीशु को सिर्फ खुदा कहें तो उसमें मुश्किल होगी आपको। फिर खुदा दो है। यीशु सिर्फ खुदा नहीं, जब भी कहें यीशु कामल खुदा और कामल इंसान है। एक ही वक्त में इंसान भी है और खुदा भी। बदन के एतबार से इंसान है, रूह और कलमे के एतबार से खुदा है। दाहिनी तरफ बैठा है। तो फिर गैर आदमी गैर लोग कह सकते हैं आपके खुदा दो है, एक तख्त पर बैठा है, दाहिनी तरफ बैठा है। तो दाहिनी तरफ बदन बैठा है, खुदा यीशु के अंदर है। हालेलुया। यीशु खुदा के अंदर है। अब वो बदन जो जमीन से गया खुदा की दाहिनी तरफ है, मगर खुदा का रूह, यीशु का रूह, खुदा का बदन, कलमा, यीशु का कलमा, वो हर जगह मौजूद है। वो लामहदूद है, वो कुदरत है, वही तो खुदा है। हालेलुया। आए जो हमारे साथ पहले तलावत की गई मत्ती में से, उस पर हम गौर करें। मत्ती की अंजील में आए। कोई बात नहीं, कभी कभी जरा इस तरह का कलाम भी होता है, मगर बरकत मिल रही है। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। हमारे यीशु की कब्र खाली है।
दुनिया के बड़े माबूद, बड़े नबी जितने आए वो सब मरे और आज भी वो कब्रों में पड़े हैं, मगर मेरा आपका यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा अपने कहने के मुताबिक, इसलिए उसकी कब्र हालेलुया। तो देखें मत्ती ने क्या कहा, मत्ती आनी का दिन था, फिर उसने 8वें बाब 28वें बाब की पहली आयत में कहा कि सब्बत के पहले दिन पोप फूटते वक्त, पोप फूटते वक्त, पोप किसे कहते हैं, पोप फूटते वक्त अभी रोशनी हो रही थी, पूरी नहीं थी, जिसको कहते हैं पंजाबी में पोप फूटना, उर्दू में भी यही है इसका, यानी रोशनी निकल रही थी। सुबह सवेरे तड़के मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आई। मरियम को 4 मरियम थी, एक मरियम लाजर की बहन थी, एक मरियम मगदलीनी थी जिसमें से यीशु ने 4 बुरी रूहें निकाली थी, एक मुकद्दसा मरियम की खादादात बहन कुलूपास की बीवी और उसके 2 बेटे थे, एक का नाम यकूब और एक का नाम और बताया कुछ। तो इस तरह मरियम को 4 मरियम हमें यहाँ नजर आती है। और देखो एक बड़ा बुनचाल आया जब यीशु कब्र से निकलने लगा, पहले बुनचाल आया, यहाँ लिखा है और बुनचाल आया, खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। लुढ़का दिया का मतलब हटा दिया। हालेलुया। इससे पहले कि यीशु जिंदा हो, खुद आसमान से फरिश्ता आया और वो एक बुनचाल आया और कब्र से पत्थर को लुढ़का दिया और वो फरिश्ता किस पर बैठ गया, कब्र के पत्थर पर, जो पत्थर सामने रखा था, यहाँ लिखा है उस पर वो बैठ गया फरिश्ता। उसकी सूरत बिजली की मानी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। हालेलुया। यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उस वक्त के मुखालिफों ने जो कहा, वहाँ यहूदी थे, उन्होंने बादशाह से कहा था कि यीशु ने कहा जीते जी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए उसे चुरा कर ले जाए, पहरा लगाए। तो वहाँ सिपाहियों का पहरा था। जब जलजला आया, जमीन कांपी, फरिश्ता आया और वो सब पहरेदार डर गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, इतने में वो औरतें मुकद्दसा मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम और सलोमी, ये सब बहुत सारी औरतें हैं। किसी जगह थोड़ी का नाम लिखा है, किसी का जगह सारा, और ये चारों अंजीलों में बात लिखी गई है। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। मुझे मालूम है, फरिश्ते ने कहा मुझे मालूम है तुम यीशु को ढूंढने आई हो। और लिखा है जो मसलूब हुआ था और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। फरिश्ते ने औरतों से कहा, औरतें कब्र पर यहूदियों का एक तरीका था, यहूदियों में कोई अगर इंतकाल करता उसको दफना देते तो दूसरे दिन खुशबूदार चीजें लेकर जाते और उसको ऊपर लगाते, उसे देते। तो यूं लिखा है कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, आओ उसकी जगह देखो जहां वो पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां